Hello guys, today we are going to discuss about the recruitment process of Infosys. So as we know, Infosys has already started its recruitment process for this year, and so today we are going to discuss about the selection process and what are the required conditions and the eligibility criteria. So we are going to see all the required things for joining Infosys. If you have any queries, please write it down in the comment section so that I can clear it. And let's see. So it's our pleasure to inform that Infosys will be conducting a massive off-campus recruitment drive to hire engineering freshers from the 2021 batch. तो यहाँ पे ये ऑफ कैंपस ड्राइव है पहले तो, और ये सिर्फ दो 2 years ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट्स के लिए ही है, दैट इज 2020 एंड 2021. सो यहाँ पर हमें दो रोल दे रखा है, दैट इज फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल्स. सो दीज आर द टू roles we have. One is specialist program and digital specialist engineer role. So these are the two roles we have. So this is the description about these roles. So the specialist program, an entry level role in the power program stream at Infosys. Specialist program are programming polyglots who are expert in deep programming, full stack capabilities, high complexity coding, and developing rapid applications. Building technologies enabled solution, and the compensation for this role will be 8 lakhs per annum. So अब हम लोग देखेंगे स्पेशलिस्ट प्रोग्राम किसे कहते हैं. एक ऐसा प्रोग्रामर जो कि हाई लेवल की कोडिंग एंड रैपिड एप्लीकेशंस डेवलप कर सके एंड टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस को एनेबल कर सके. सो इन सब को करने वाले को हम लोग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम कहा जा रहा है यहाँ पे. सो इस रोल के लिए आपको मिलता है 8 lakhs का पैकेज, एंड उसके बाद मिल रहा है हमें डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर. द रोल वाज फॉर्मली नोन एज सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट. सो इसको डीएससी की तरफ से भी माना जाता है और SCS की तरफ से भी माना जाता है. तो दिस रोल रिक्वायर्स फुल स्टैक कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स लाइक एनालिटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, बिग डेटा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी एंड द डिजिटल कॉमर्स, इंटरेक्शन एंड मार्केटिंग. सो हमारे यहाँ पर इस मेल में ये बताया है हमें कि डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग वो ऐसा रोल है जिसमें आपको फुल स्टैक की कैपेबिलिटीज एंड एनालिटिकल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, बिग डेटा, इन सब का आपको ज्ञान रहना चाहिए इस रोल के लिए अप्लाई करने के लिए. और इस रोल का आपको पैकेज मिलता है 5 lakhs पर एनम. तो ये दो रोल्स हमको इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिल जा रही है इस साल. तो जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है, 2020 एंड 2021 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही है ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल. सो द कोर्सेज जिन जिन ने ये कोर्सेज किया है, बी टेक, BE, ME, M.Tech, MCA, MSc, these are the courses are authorized for applying for this post. So the branches, the applicable branches are computer science, electronic communication engineering, electronics and electronics telecommunication, and IT, and information science and engineering, mathematics and computing. सो ये ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अच्छी तरह से. और हम एकेडमिक क्राइटेरिया, दैट इज़ परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, आपको बैकलॉग रहना है नहीं रहना है, ले बैकलॉग पास्ड आउट चलेगा या मतलब क्लियर कर दिया तो चलेगा, ये सब इसके बारे में हम देखेंगे थोड़े आगे. तो मेन बात ये है कि इसका जो लास्ट डेट है सितंबर 26 है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है. एंड ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं.
So this is the Infosys campus recruitment eligibility criteria. So as we have discussed, this is an off-campus drive, and for this eligibility criteria will be students should be BE or BTech or ME or MTech passed out, and the year of passing out is should be 2020 and 2021. And MCA and MSc students can also apply for this thing, and those who are like computer science students or electronics and mathematics, physics, statistics students, those students are eligible for this role. When we talk about this eligibility criteria, Infosys go through 10th class to your graduation. So the minimum percentage should be 60 for the 10th, and for 12th it should be 60, not less than that for both 10th and 12th. And when it comes to diploma, it should be around 68%, not less than that. And for graduation BE BTech, that is 68 percentage or 6 CGPA, not less than 6 CGPA or not less than 68%. More is okay, but not less. Those will be applicable for applying the rule. And all the percentage CGPA should be simple average of students, all subjects. तो यहाँ पर 60% 10th में एंड 60% 12th में एंड 68% डिप्लोमा में है. अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो 68% आपका मिनिमम रहना चाहिए. एंड बीटेक में भी आपका 68 एंड 6 CGPA रहना चाहिए. उससे कम रहेगा तो आप इस रोल के लिए शायद अप्लीकेबल नहीं है. तो इसका जो CGPA और परसेंटेज है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का सारे सेमेस्टर के मुताबिक रहना चाहिए. एंड इन केस कैंडिडेट हैज़ डन बोथ 12th एंड डिप्लोमा, तो बेस्ट ऑफ 2 निकाला जाएगा इसका. एंड ये मेन नो एक्टिव बैकलॉग्स आर अलाउड. सो बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर Infosys 2021 year. And I hope it's clear. I'll just give a glance about this thing. एक बार आपको तुरंत याद दिला देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या बात किया था. हमने ये बात किया था कि जो इन्फोसिस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये सिर्फ 2020 एंड 2021 बैच के लिए एप्लीकेबल है. सो ये 2 साल में जो ग्रेजुएट पास हुए हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड इसका मिनिमम कट ऑफ है 60% 10th एंड 12th में. एंड डिप्लोमा में 68% है एंड बीटेक में भी 68% है. 6 CGPA भी माना जा सकता है, बट 6 CGPA से कम नहीं रहना चाहिए. एंड नो बैकलॉग शुड बी देयर, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए कुछ भी. एंड BE BTech ME MTech वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, MCA MSc वाले भी. एंड इसकी लास्ट डेट है 26 सितंबर 2021, दैट इज संडे. सो जो भी स्टूडेंट इससे पहले अप्लाई करता है उन्हीं को ये एप्लीकेशन में से टेस्ट लिंक जनरेट होगी. एंड इसके 2 फेसेस हैं इस प्रोसेस के पूरे रिक्रूटमेंट में. 2 स्टेजेस हैं. सबसे पहला होगा आपका एक ऑनलाइन टेस्ट एंड उसके बाद वर्चुअल इंटरव्यू. सो सिर्फ यहाँ पर हमें 2 स्टेज को क्रॉस करेंगे तो आप इस रोल के लिए एप्लीकेबल हैं. तो और 2 ही रोल हमें इस बार देखने को मिल रहा है, दैट इज SE एंड DSC. तो हमने जिससे पहले बात किया था, हमने इससे पहले भी इसके बारे में बात हुई थी कि SP स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर. सो ये 2 रोल्स देखने को मिल रहा है, जिसका 8 lakhs पैकेज एक है और जिसका 5 lakhs पैकेज एक है. तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उधर से अप्लाई कर सकते हैं. एंड आप जैसे ही लिंक में जाके पूरे अपने डिटेल्स फिल करेंगे, तो आपको एट द एंड ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा. थैंक यू फॉर टेकिंग द फॉर्म. सो 10-15 मिनट में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट आपके सारे डिटेल्स करेक्ट हो.
Thank you. Please give a like